Hello and welcome to my new session. This is your polity session in which I'm going to discuss political parties, that is from class 10th NCERT, and it is very important topic for your term 2 examination. In this topic, I'm going to cover political parties, necessity of the political parties, why these political parties are important in any democratic country or for any country. I'm going to discuss functions of political parties, different party system means nowadays you can see all over the world that the country having many types of political parties, some country having single ruling parties, some having twos, and some of the countries where many or multi parties are there. Next we will see the challenges to a political parties, and last one, reforming the political parties. This is very important for the current scenario, that how reforms are important in political parties. We can see that they are following the traditional patterns where they are fooling the people, they are making us fool. Okay, so as a responsible citizen, what reforms we should try to do in our political parties, and what leaders, what our representatives should do to reform a party. So let's begin our session with first topic, that is your political party. So see, first of all the question came in our mind that what is a political party. Okay, so a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. गवर्नमेंट जो सरकार होती है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, दे कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शंस. पार्टीज के बीच में यू सी इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years. यू सी द फेस्टिवल ऑफ इलेक्शंस दैट हेल्ड इन आवर कंट्री. हर 5 साल पे कोई ना कोई इलेक्शन आ ही जाता है. और ये पार्टीज क्या करती हैं, दे फाइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective goods. Collective good in the sense for the betterment of society, for the mass, for the people of this country. They उन लोग अपनी कुछ पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, उनका कुछ एजेंडा होता है समाज की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, और उस पॉलिसी पे काम करते हैं. इलेक्शन के टाइम अपना मैनिफेस्टो लेकर आते हैं कि दैट आर पार्टी विल डू दिस 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 आफ्टर विनिंग दिस इलेक्शन. और हम क्या करते हैं, वी ग्रीडी पीपल उनके झांसे में आ जाते हैं इजीली, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, parties reflect fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. Okay, thus a party is known by which part it stands for, which policy it supports and whose interest it upholds. जो पार्टियां हैं समटाइम्स पक्षपात करती हैं, है ना. सारे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका अपना अपना एजेंडा होता है. दे बिलोंग्स टू अदर सेक्शंस, अदर क्लास. सम पार्टीज रिप्रेजेंट सम रिलीजियस, इन जो सपोर्ट करते हैं किसी को भी धार्मिक तरीके से, या जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम जो देखते हो आप, इलेक्शन के टाइम कितना हावी हो जाता है कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ. तो जिस कास्ट से जो बिलोंग करता है या जिस रिलीजन से जो बिलोंग करता है वो पार्टीशनशिप मीन्स पक्षपात करते हैं सोसाइटी के अंदर. और जिन लोगों ने जैसा वादा किया है, जिसके लिए जो जिसको सपोर्ट करता है उनका क्या करते हैं, फेवर करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टियाँ. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 components. विच आर दे? द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
इनका अपना एक लीडर होता है जिनको फेस बनाकर ये क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। एंड एक्टिव मेंबर्स होते हैं। एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं, जो सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं पार्टीज़ के लिए, जो इलेक्शंस के लिए, ये एक्टिव मेंबर्स उनके लिए क्या करते हैं, झंडे उठाने से लेकर चुनाव जीतने तक का सारा जिम्मा इन एक्टिव मेंबर्स के जिम्मे होता है। और फिर उनके फॉलोअर्स होते हैं, है ना, जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई दिस पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट in, you know that we all live in a democratic country. Max of the countries of the world, they are democratic now. So what is the importance of this political party? If there were no political party, then each and every candidate would be independent. अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उस कंट्री के अंदर सारे लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली चुनाव लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। उस केस में क्या होगा, जिसकी डफली उसकी राग, सारे लोग अपने एरिया के क्या होंगे, लीडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी द करेंट सिनारियो ऑफ इंडिया। करेंट strength of the Lok Sabha is 543. Imagine a situation when none of the 543 members can be brought to think alike on a particular issue. This would lead to a total chaos, है ना। अगर 543 मेंबर जो हैं किसी एक मुद्दे पर एक साथ नहीं आते हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आते हैं और डिसीजन नहीं बन पाता है, तो उस केस में प्रॉब्लम किसको होगा, यहाँ के सिटीजन्स को होगा, है ना। And independent candidates would always be more interested in the specific need of his constituency and would seldom think about the larger interest of the nation. हमेशा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर 543 कैंडिडेट्स दे आर फाइटिंग इंडिविजुअली, इनकी कोई पार्टी नहीं है, दे आर फाइटिंग इंडिपेंडेंटली, व्हाट दे वुड डू, दे विल टेक केयर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंसी। उनको कंट्री के जो वेलफेयर से इनको कोई मतलब नहीं होगा, है ना, क्योंकि इनके जनता इनको जिताती है, तो ये अपने सिटीजन, अपने पब्लिक के लिए ही क्या करेंगे, काम करेंगे। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग डाइवर्स पीपल ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म सो दैट बिगेस्ट इशूज़ कैन बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जो कॉमन माइंडसेट के लोग हैं, जो एक विचारधारा रखते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करती है। और सारे लोग मिलकर फिर क्या करते हैं, मेन मोटिव क्या है हमारा, कंट्री का डेवलपमेंट। बिकॉज फॉर अस इंडिया इज़ फर्स्ट, और हम इंडिया के लिए काम करते हैं, है ना। हमारी कॉमन आइडेंटिटी क्या है, दैट वी ऑल आर इंडियन। सो नेक्स्ट पॉइंट, द डेमोक्रेसी विच इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो आज जहाँ भी आप देख रहे हो, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, अनुसरण किया जा रहा है इसका। इन दिस सिस्टम गवर्नेंस इज डन थ्रू पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ईच सिटीजन टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सारे जो पब्लिक हैं, जहाँ के लोग हैं, सारे लोग सरकार नहीं चलाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव दे चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि वहाँ की जो जनता है, जो पब्लिक है, अपनी सरकार खुद चुनती है, अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, एंड देन दिस लीडर डिसाइड्स एंड दे फॉर्म देयर गवर्नमेंट्स। The need for the representative democracy has given rise to political parties। और ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक छत के नीचे आते हैं और अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लिए क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, है ना। सो दैट्स वाई दिस पॉलिटिकल पार्टीज
are very very important for any democratic country, because the people have right to choose their own representative, and that representatives those representatives will form the government. Okay, now come functions of a political party. Okay, functions of a political party, our next topic. Let's see what are the works of a political party. In that, first one, contesting elections. Political parties contest elections. A political party nominates its candidate for the electoral contest in various constituency. सपोज इन इंडिया, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके, और यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग कैंडिडेट्स को ये क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट्स करती हैं, और ये फिर इलेक्शन फाइट करते हैं। एक बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो कि इलेक्शन क्या करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो सारे जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होंगे वो अपने अपने कैंडिडेट को अपने एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एज अ कैंडिडेट। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है कि उनके बैनर तले वो जो कैंडिडेट है चुनाव लड़ेगा। पॉलिसीज, सेकंड पॉइंट इज योर पॉलिसीज। Political parties put forward different policies and programs so that the voters can choose from them. जब इलेक्शंस आते हैं तो जो लीडर्स होते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, है ना। तो उनको चूज़ करके जो पब्लिक को अच्छा लगता है उस लीडर की बातों को सुनते हैं, और जो उनको अच्छा लगता है उसको क्या करते हैं, वो चूज़ करते हैं, उनको वोट करते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी ब्रिंग्स अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस अंडर वन अम्ब्रेला, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके सारे कैंडिडेट सेम मैनिफेस्टो के साथ क्या होते हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन फाइट करते हैं। दिस ओपिनियंस आर चैनलाइज्ड टू फॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी क्या होगी, रूलिंग पार्टी जो सरकार में होगी, जिसको मैंडेट मिलेगा, जिसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, है ना, जो सरकार चलाने के लिए काबिल होगा, और वो क्या करेगी, अपने जो पॉलिसीज जो प्रोग्राम्स उसने वादे किए हैं उसके साथ अपनी गवर्नमेंट को चलाएगी, सरकार बनाएगी और उनको फॉलो करेगी। नेक्स्ट, मेकिंग लॉ। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सपोज वो रूलिंग पार्टी हो गई, अब वो पार्लियामेंट में क्या कर रही हैं, बैठ रही हैं, तो वहीं तो लॉ बनाएंगी ना। लेजिस्लेचर के अंदर लॉ कौन बनाएगा, यही पार्टियां, रूलिंग पार्टियां, है ना। You may be aware that it is the legislature which passes a law after proper debate. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि जो लेजिस्लेचर का क्या काम है, दे मेक रूल्स, है ना। तो जो लॉ पास होता है एक प्रॉपर डिबेट के बाद, तो यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है अपना इम्पॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है, बिकॉज दे हैव द मैंडेट्स, दे हैव मेजॉरिटी, सो दे कैन ईजिली पास करा लेते हैं रूल को। एज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, सो अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ डायरेक्ट से इन लॉ मेकिंग फॉर द कंट्री। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी में कौन, रूलिंग पार्टी, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी लॉ को बनाने में, है ना। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। जो पॉलिटिकल है, जो रूलिंग पार्टी जब हो गई, पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया, तब क्या करेगी, वो सरकार बनाएगी, सरकार चलाएगी। द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज फॉर्म्ड बाय पीपल फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स आर असाइंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू कैरी आउट द टास्क ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, ये अपने क्या करती है, अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करती है। सपोज यू हैव रेल मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर देयर, होम मिनिस्ट्री,
और ये मिनिस्टर जो हैं अलग अलग अपने कार्यभार को देखते हैं, अलग अलग ऑफिसेस को क्या करते हैं, संभालते हैं, और कंट्री को स्मूथली, गवर्नमेंट को क्या करते हैं, स्मूथली चलाते हैं। नाउ कम टू द प्लेइंग ऑपोजिशन। सपोज करो रूलिंग पार्टी क्या हो गई, वो तो सरकार में है, उसको फुल मेजोरिटी मिला हुआ है, और जिस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला है, जो चूक गई है सरकार बनाने से, वो क्या करेगी, ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी। ऑपोजिशन भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू अपोज द रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नहीं तो जो रूलिंग पार्टी वो क्या करेगी, मनमानी करेगी। A party which does not get majority or come under the majority coalitions need to play the role of opposition। और ये जो अपोजिशन की पार्टी होगी, ये मेजोरिटी में नहीं आने से ये अपोजिशन में बैठती है और रूलिंग पार्टी को क्या करती है, अपोज करती है, मनमानी न करने से, है ना। सो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। ये जो लोगों के विचार होते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं हमारे कंस्टिट्यूएंसी में, या जो कंट्री के, पूरे कंट्री की अगर बात करें तो कंट्री के जो फार्मर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं। तो उनके विचार को, इनके थॉट्स को भी बाहर लाना, उनके लिए लॉ बनाना, ये भी किसका काम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, दे डू शो बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग इशूज द लेजिस्लेचर इन द मीडिया एंड इन द मीडिया। या तो लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, जो लीडर्स होते हैं, या अगर वहाँ पर सुनवाई नहीं होता है तो आप देखते हो टीवी में डिबेट्स होते हैं, है ना। तो वहाँ पर ये जो लीडर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पार्टीज़ के तरफ से जाते हैं और अपने विचार को रखते हैं। आप हमेशा टीवी डिबेट्स देखते हो, टीवी डिबेट्स का हो सकता है कोई रिजल्ट ना आता हो, लेकिन डिबेट्स होते हैं डेली, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। जो पार्टीज़ होंगी, जो रूलिंग पार्टी होगी, है ना, तो पार्टी प्रोवाइड्स पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स सिंस इट इज़ ईजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर दैन गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इनके पास पूरा का पूरा क्या है, जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार बनाती है और उसके बाद जो लॉ बनाती है, ठीक है ना, तो अपने स्कीम्स को लेकर ये कहाँ जाएगी, लोगों तक जाएगी, लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी एग्जीक्यूटिव की मदद से, है ना। तो इन सारे चीज़ों का काम कौन करेगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, ठीक है। चाहे वो ऑपोजिशन में हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी में हो। रूलिंग पार्टी में है और रूल बनाएगी, लोगों के पास स्कीम लेके जाएगी। अगर स्कीम में कोई प्रॉब्लम हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन में किसी तरह का फॉल्ट है या कोई दिक्कत है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, तो वहाँ पे अपोजिशन पार्टी क्या करेगी, अपोज करेगी, है ना। Now come different party systems. Okay, this is also a very important topic, that which type of party system is present in which countries, or which type of systems are there in democracies in different countries, we will see. Okay, first of all, see one party system. In some countries only one party is allowed to control and run the government. These are called one party system. This country में केवल एक ही पार्टी हो, है ना, इसके अलावा किसी भी पार्टी को अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। ऐसे कंट्रीज़ को, वैसे कंट्री में वन पार्टी सिस्टम की क्या है, प्रावधान किया गया है, प्रोविज़न किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन चाइना
ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। चाइना में केवल और केवल एक पार्टी ही क्या करती है, चुनाव लड़ती है, और इसी पार्टी का क्या है, पूरा दबदबा है। और वहाँ जैसे कि अभी चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग, है ना, उनको लाइफ टाइम के लिए वहाँ का क्या बना दिया है, प्रेसिडेंट। मतलब ये जब तक रहेंगे, गलत करे सही करें, है ना, किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। पीपल हैव नो राइट टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल पार्टी, है ना। और या जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके अगेंस्ट में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है वहाँ पे। वन पार्टी सिस्टम है चाइना में। ओके, कम टू द अनदर सिस्टम, दिस इज योर टू पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू मेन पार्टीज। ओके, जो आप पॉलिटिकल चैप्टर देखते हो क्लास 10th में, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, पावर शेयरिंग। आपने पढ़ा होगा वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेसी, है ना। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ पर दो पार्टी क्या है, अपने पावर को शेयर करती हैं, है ना, या दो पार्टी एक अपोजिशन में होगी और एक रूलिंग पार्टी होगी, ऐसी सिस्टम जहाँ पे होगी, जिस कंट्री में होगी, सच पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, है ना। जो यूके एंड यूएसए, यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। जैसे अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्या है, कौन है, बोरिस जॉनसन, एंड ही बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव पार्टी। और जो लेबर पार्टी है वहाँ पे अपोजिशन में है। कभी अगर लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो कंजर्वेटिव वाले अपोजिशन में होंगे। ओनली टू पार्टीज आर देयर। लाइक दैट इन यूएसए रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज आर देयर। जहाँ अभी आपके प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के, जो बाइडेन, जो कि आपके 46th प्रेसिडेंट हैं अभी अमेरिका के, ही बिलोंग्स टू डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो रिपब्लिकन है वो अपोजिशन पार्टी है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे ऐसे कंट्रीज़ में टू पार्टी सिस्टम है, और ये एक रूलिंग पार्टी होगी, एक अपोजिशन पार्टी होगी। नाउ कम टू कंट्रीज लाइक इंडिया, मल्टी पार्टी सिस्टम। यू कैन सी द image, and you know also that how many parties are there in India, है ना। if several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance to winning, we call it a multi party system. in India we have multi party system। हमारे यहाँ बहुत सारी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना। जब इलेक्शन होता है, जब कोई वोट देने जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है। इतने सारे जो मशीन होते हैं, उस मशीन में पूरा का पूरा क्या, अलग अलग लोगों और अलग अलग पार्टीज़ के कैंडिडेट होते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोट किसको दें, है ना। सिंस मल्टी पार्टी सिस्टम टेंड टू ऑफर मोर चॉइसेस, यस यू विल गेट मोर चॉइस इन मल्टी पार्टी सिस्टम, बट सम प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर, इट विल कम। It is often considered better than the other party system। जो सिंगल टाइप है या टू पार्टी सिस्टम है या सिंगल पार्टी सिस्टम है, उनसे ज़्यादा आपको चॉइस मिलता है किस में, मल्टी पार्टी सिस्टम में, है ना। लेकिन क्या इसमें कंपैरिजन फिर कर लेते हैं बिटवीन टू पार्टीज एंड मल्टी पार्टी सिस्टम में। सिंगल पार्टी में तो आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। एटलीस्ट टू जो पार्टी सिस्टम है उसमें तो यू हैव टू चांस, है ना। तो जहाँ पे मोर चांसेस, आप मार्केट जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, यू हैव मैनी शॉप्स एंड यू कैन सेलेक्ट योर गुड्स एट एनी शॉप, है ना। यू हैव मोर चॉइस देयर, यू आर फ्री टू चूज योर थिंग्स, योर गुड्स। लाइक दैट इन डेमोक्रेसी ऑल्सो यू हैव राइट, you should choose। okay, now see comparison between two party and multiple party system। first one, two party system presents voters a simple choice, either A और B। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, है ना। लेकिन when you will come to multi party system, it provides voters with many choices। You will get many choices in multi-party system, that either A, B, C, D, E, F, G, H आप सेलेक्ट करते रहो,
है ना, कि कौन अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हो तो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हो, इसका कैमरा अच्छा है तो इसका बैटरी मैनेजमेंट सही नहीं है, इसका बैटरी मैनेजमेंट सही है तो इसका रैम मैनेजमेंट सही नहीं है ना, सब कुछ सही है तो इसका डिस्प्ले सही नहीं है, इसके साइज़ सही नहीं है। तो कितने आपको, अगर मार्केट में दो ही तरह के आपको मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हैं तो आपके पास कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो दोनों में से कोई एक चूज़ पिक करोगे, है ना। नाउ टू पार्टी सिस्टम, सेकंड पॉइंट, दिस प्रोवाइड्स फॉर ए स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट जो है, जो स्थिर सरकार होती है, बार बार इसमें कैंडिडेट्स चेंज नहीं होते हैं या जल्दी सरकार गिरने के चांसेस नहीं रहते हैं, है ना। वेयर एज इन मल्टी पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट इज़ नॉट स्टेबल इन दिस सिस्टम। सरकार इसमें स्थिर नहीं रहती है। इसमें इजीली लीडर्स को क्या किया जाता है, खरीद लिया जाता है, या सरकारें गिर जाती हैं, या कोलिजन की गवर्नमेंट है, अगर सपोज कोलिजन मतलब मोर देन टू पार्टीज व्हेन फॉर्म गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड योर कोलिजन टाइप गवर्नमेंट, है ना। तो जब कोलिजन की सरकार बनती है तो हो सकता है क्या, एक पार्टी अपना हाथ खींच ले तो सरकार गिर जाएगी, फिर री इलेक्शन कराना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन को फिर प्रॉब्लम होगा इस केस में। Two party systems are not as flexible because they have a more or less rigid set of opinions on every issue. अगर दो ही तरह के विचार आपके मन में हैं तो हो सकता है समटाइम्स दिस थॉट में भी कंजर्वेटिव, रिजिड टाइप थॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि यू हैव नो मोर ऑप्शंस, ओनली टू ऑप्शंस यू हैव टू चूज एनी वन आउट ऑफ टू. But here in multi-party system, there are many candidates, many political parties, their agendas are different, their thoughts are different, their opinions are different, and they can choose better one, है ना। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग विचार, जो अच्छा होगा they will pick out of that. In two-party system example I already taught you, USA and UK, and in multi-party system India, many countries are there, France is there, Canada is there, Germany is there, Indonesia is there, okay. So these are the examples of multi-party systems. Now another, we should read this, that what are national parties and state parties, है ना। नेशनल पार्टी किसको बोलेंगे या स्टेट पार्टी किसको बोलेंगे, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। A party that secures at least 6% of total votes in Lok Sabha elections. लोक सभा इलेक्शंस में जितने भी वोट्स हैं उसके 6% अगर किसी पार्टी को मिलता है, और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विंस एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, लोकसभा में 4 सीट जीतना जरूरी है उसको, और लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। स्टेट में फिर आएंगे इलेक्शन में, अगर लोकसभा में वो मिनिमम 4 सीट जीतती है, और असेंबली इलेक्शन जो होते हैं उसमें उनको 4 स्टेट में चुनाव अगर लड़ती है वो पार्टी, और उसको लोकसभा सीट्स के लोकसभा के वोट्स के टोटल 6% अगर उसको वोट मिलता है, तो दिस पार्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। ऐसी पार्टी को हम क्या बोलेंगे, नेशनल पार्टी बोलेंगे, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बोलेंगे। बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है ना, आपके सीपीआई है, बहुत सारी नेशनल पार्टीज़ हैं। स्टेट पार्टीज़ की बात करें, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। स्टेट अगर कोई स्टेट है, सपोज अगर बिहार की बात करें, तो यहाँ पर जितने वोट्स हैं उसका 6% मिलना इसको ज़रूरी है, एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स, और एक स्टेट में कम से कम 2 सीट अगर जीतती है टोटल सीट का, तो इसको माना जाएगा कि ये स्टेट लेवल की पार्टी है ना। नाउ चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट पॉलिटिकल पार्टी फेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, ओके। सो वन क्वेश्चन आई एम राइजिंग हियर, इज इंडियन डेमोक्रेसी हेडिंग टुवर्ड्स मोनार्की? One man, one show is going on in this country. So can we say, or can we think that is Indian democracy heading towards monarchy? Think, it's up to you what you think.
I am going to explain you the challenges to a political party. Lack of internal democracy. First point is lack of internal democracy. There is a tendency in political party towards the concentration of power in one or few leaders at the top. Okay, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके अंदर क्या होता है, वन मैन टू मैन शो होता है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अभी आप बीजेपी की बात करते हो, गवर्नमेंट कहीं पे भी बनती है, आप चेहरा किसका लाते हो, मोदी का लाते हो, है ना। तो बीजेपी पार्टी के अंदर जो मोदी हैं या अमित शाह हैं, है ना, ये मेन फेस हैं। और इन्हीं के इर्द गिर्द जो पार्टी है, या आप कांग्रेस की बात करते हो तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, है ना। बाकी जो पार्टी मेंबर्स के बारे में कोई जानता भी नहीं है। पार्टीज डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स टू डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज के जो अंदर के मामले हैं वो आम आदमी को नहीं पता चल पाता है ना, कि पार्टियां क्या कर रही हैं, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, और बहुत सारे जो चीज़ें हो रही हैं पार्टी के अंदर, तो ये पता नहीं चल पाता है। अदर पार्टी मेंबर को भी नहीं पता चल पाता है ना। जो पार्टी हेड होते हैं या जो मेन फेस होते हैं वहीं सारा जिम्मा देखते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशंस, दोज हु हैपन टू बी लीडर्स आर इन अ पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेम्बर्स। जो एक हिरार्की चली आ रही है, जो वंशानुगत कि इनका बेटा है तो फिर आगे इलेक्शन क्या करेगा, लड़ेगा। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी सुपर 30, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वहीं बनेगा जो असली हकदार होगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख लो, गांधी परिवार के पूरा आप पीढ़ी देख लो, आप सारे सक्सेसर हैं उनके, है ना। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, देन इधर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब ये लोग पूरा भरे हुए हैं। उसी तरह बीजेपी में भी देख लो, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हो गए, अमित शाह के बेटे जयशाह हो गए, बहुत सारे जो इनके सक्सेसर हैं, इनके अपने ही घर में ये क्या चलते रहता है, दुकान चालू रहता है इनका, है ना। मनी एंड मसल पावर, the parties tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money। पार्टीज को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और ये पैसा कहाँ से आएगा। अगर कैंडिडेट रिच है, ही विल ईजिली मैनेज द मनी। ओके, तो पार्टी की क्या है, ये मजबूरी भी है, उनको फंडिंग करना है। नाउ अ डेज यू कैन सी दैट हाउ योर इलेक्शंस आर मीन्स एक्सपेंसिव, कितना कॉस्टली हो गया है आपका इलेक्शन। इस केस में जो पैसे वाले लोग हैं वो आसानी से उनको क्या मिल जाता है, टिकट मिल जाता है, वो कैंडिडेट बन जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के। इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स, और ऐसे केस में पावरफुल इंसान की भी क्या होती है, समाज में बहुत इज्जत होती है, चाहे वो क्रिमिनल माइंड का क्यों ना हो। आज हमारे जो रिकॉर्ड है प्रीवियस ईयर की, उसके अकॉर्डिंग टू दैट 72% लीडर्स इन इंडिया आर क्रिमिनल माइंडसेट। 72%, यू कैन इमेजिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव या लीडर, हम किस तरह के लीडर या रिप्रेजेंटेटिव वी आर चूजिंग इन आवर डेमोक्रेसी। व्हाट दे विल डू, वी आर चूजिंग अ क्रिमिनल माइंडसेट पीपल एंड वी एक्सपेक्ट दैट दे विल डू बेटर फॉर आवर सोसाइटी। हाउ, इट्स नॉट पॉसिबल। क्रिमिनल माइंडसेट का जो इंसान होगा हमेशा क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में ही सोचेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर्स, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ओके, मतलब जो लोगों के बीच में जो सही तरीके से क्या होना चाहिए, जो कैंडिडेट होना चाहिए, इस पॉलिटिकल पार्टी को जो चेहरा है, जो फेस है, वो सही तरह से लोगों के सामने लाना चाहिए अपने कैंडिडेट्स का, ताकि वो सही से अच्छे कैंडिडेट का क्या कर सके, चुनाव कर सके। सपोज करो कि पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं है, 4 कैंडिडेट्स आर फाइटिंग अमंग ईच अदर एंड ऑल 4 आर क्रिमिनल्स। अगर किसी ने एक वोट दे दिया तो डेमोक्रेसी में क्या हो जाएगा, वो आपका लीडर बन जाएगा।
है ना। सो पार्टी को ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि सही कैंडिडेट को लोगों के सामने लाएं, जो इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जो मनी का प्रॉब्लम है, जो पावर का गेम है टोटल, उसको कम किया जाए। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। आई एम गिविंग यू सम कोट, ओके। वाई रिफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट, है ना। जो हम ट्रेडिशनल तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते आ रहे हैं, या जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ दे आर डूइंग देयर एक्टिविटीज़, सो उसमें अब रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ना। उसको पेंट करने की ज़रूरत है। वन वेरी गुड कोट, पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ देयर पीपल। हमें सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को लोगों से डरने की ज़रूरत है। आफ्टर 5 years यू चूज़ योर रिप्रेजेंटेटिव, आपके रिप्रेजेंटेटिव आपको नहीं चूज़ करते हैं। 5 years के बाद उनको इलेक्शन फाइट करना है, आपको हमेशा वोट देना है। तो गवर्नमेंट को हमेशा पब्लिक से डरनी चाहिए, है ना। लेकिन हम अपोजिट हैं, हम ही गवर्नमेंट से क्या करते हैं, डरते हैं। सारे अपने काम में बिजी रहते हैं, गवर्नमेंट अपना काम करते रहती है। जो मन आया बिल पास कर दिया, और गवर्नमेंट पब्लिक को क्या करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। सो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां, आपके लीडर्स को डरने की ज़रूरत है कि 5 साल बाद कौन सा चेहरा लेके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी। The Constitution was amended to prevent elected members from changing parties. इस तरह का अमेंडमेंट किया गया है, प्रावधान किया गया है कि जो कैंडिडेट्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उनको पार्टी बदलने से क्या किया जाए, रोका जाए। दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर indulging in defection in order to become minister for cash rewards. मिनिस्टर बनने के चक्कर में इलेक्टेड कैंडिडेट, सपोज करो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन के पार्टी के पास भी कुछ कैंडिडेट्स जीत कर आएंगे, उनके पास भी कुछ सीटें आएंगी। तो इनके लीडर क्या करेंगे, पैसे के लिए या पावर के लिए या मिनिस्टर बनने के लिए या रूलिंग पार्टी में चले जाएंगे, है ना। तो इसको रोका जाना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट करके ऐसा कुछ लाना चाहिए ताकि इनको पूरी तरह से क्या किया जाए, रोका जा सके। जो दल बदल वाली नीति है, इसको बदलने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि जो ये प्रभाव है पैसे का और क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों का इलेक्शन पर, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। जो बाहुबलियों की राजनीति आप देखते आ रहे हो, इनको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अगर किसी कैंडिडेट्स के पास उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, उसका पूरा डिटेल आपको एफिडेविट में लिख कर इलेक्शन कमीशन को देना होता है। जब आप कैंडिडेट, अगर आपको नॉमिनेट किया जाता है तो, या आप इंडिपेंडेंटली भी अगर आप इलेक्शन फाइट करते हो, तो आपको सारा डिटेल देना पड़ता है कि आप पे कितना केस पेंडिंग है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का किया है। लेकिन फिर भी मोर देन 70% हमारे जो लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर क्रिमिनल माइंडसेट। कोई ना कोई चार्ज है उन पर। बहुत सारे कैंडिडेट्स आप लोग देख रहे हो, जेल से इलेक्शन जीत जाते हैं, है ना। कितना सुंदर हमारा डेमोक्रेसी है। जेल में बैठे बैठे ही क्या कर लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, और हम उनको अपना लीडर मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। आपका जो इनकम है, उसके लिए इनकम टैक्स आपको रिटर्न भी पे करना पड़ता है ना। आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, इनकम पे टैक्स लगता है। तो इन सारे टैक्स को
पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर हैं अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी है कि उनके आईटी रिटर्न्स जो हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, उनको फाइल किया जाए। ओके, नेक्स्ट, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अंदर चेंजेस करने के लिए कुछ नियम कानून क्या करने चाहिए, बनाने चाहिए और उनको फॉलो कराने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। ये नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं केवल पब्लिक के लिए ही बनेंगे। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, अपने लिए, खुद को डिसिप्लिन में रहने के लिए, क्योंकि लीडर्स देखते हो समटाइम्स क्या करते हैं, वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, है ना, कुछ भी कर देते हैं और फिर बच जाते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास पैसे हैं, इजीली बाहर आ जाते हैं। Next, it should be made mandatory for political parties to give minimum number of tickets, about 1/3 of tickets, to the women candidates. Why? Because the condition of women was not good, and in current situation also the condition of women are not good. शुरू से चला रहा है, इन वीमेंस को प्रमोट करने के लिए 1/3 जो है टिकट वीमेन को देना होता है ना, रिजर्वेशन है ऐसा, तो इनको देना होता है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। जो इलेक्शन पे इतने खर्चे होते हैं, ये किसका, पब्लिक के टैक्स का पैसा होता है ना। तो देखते हो आज इलेक्शन कितना कॉस्टली हो गया है। तो चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो चुनाव लड़ती हैं, जो कम्पीट करती हैं, उनको अपने पैसे से क्या करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, है ना। तो वी सॉ डिफरेंट पॉइंट्स, हाउ पॉलिटिकल पार्टी फंक्शंस, what are the challenges, what reforms we should do for the political parties, and political parties themselves they should do some reforms। तभी हम सुंदर एक अच्छा सा क्या डेमोक्रेसी बना सकते हैं, इस कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जो सरकार चला रहा है, जो पावर में है, अगर वहीं सही से फंक्शन नहीं करेगा तो फिर कंट्री का जो फ्यूचर है, जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में आप सोच सकते हो, व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड वाई पीपल आर सफरिंग, वाई वी आर सफरिंग। ठीक है, जो लीडर्स हैं कैसे इस भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, वी कैन सी और यू कैन सी ऑल्सो ईजिली। क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए। द पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर। हम अपने पावर को नहीं समझते हैं कि हमें क्या अधिकार दिए गए हैं। मैक्स ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, और बहुत लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है पार्टी या गवर्नमेंट क्या करती है। हम लोग सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट की। अगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, वाई यू आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। आपको वोट देने का अधिकार है, यू हैव राइट टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो अच्छा करे सपोर्ट कीजिए, इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग गुड देन अपोज हिम, इट्स योर राइट, है ना। यू कैन सी द इमेज के द्वारा मैंने क्या क्लियरली ये जो लीडर साहब हैं जो बोल रहे हैं, वो कहाँ खड़े हैं, पब्लिक के दम पर खड़े हैं वो। अगर पब्लिक वहाँ से हटी तो तुरंत नीचे गिर जाएंगे, है ना, जो कि 5 साल बाद लोग कर देते हैं वैसा। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री what rights we have, what we can do, we can aware the people, we can make them conscious. So this is your full chapter, political parties, their work, their functions, their challenges, their types. So I hope that you understood nicely. ओके, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन रहता है। ओके, एंड गिव मी योर फीडबैक, दैट विल मोटिवेट मी टू मेक more and more videos for you, and this chapter is very important for your term 2. Okay, so see the video.